Hello friends, so today in this video we are continue with the anatomy muscles of the front of forearm. Okay, yesterday we discussed about the arm muscles. એમાં આપણે જોયેલા front muscles and back muscles. જેમાં ફ્રન્ટમાં આપણે three muscles જોયેલા, that is brachioradialis, biceps and coracobrachialis. brachialis, coracobrachialis and biceps. એન્ડ એમાં આપણે બેકમાં જોયેલા ઓનલી વન મસલ દેટ ઇઝ ટ્રાઇસેપ્સ. ઓકે, એમાં જે એન્ટેરિયર કમ્પાર્ટમેન્ટ ઓફ આર્મ મસલ ફ્લેક્શન કરે છે અને પોસ્ટિરિયર કમ્પાર્ટમેન્ટ ઓફ આર્મ મસલ એક્સટેન્શન કરે છે. નાઉ ટુડે વી કન્ટિન્યુ વિથ ધી મસલ્સ ઓફ ફ્રન્ટ ઓફ ફોર આર્મ. હવે ફોર આર્મ ઓકે એટલે કે જે એલ્બોની નીચેનો ભાગ છે ત્યાંથી લઈને જે હેન્ડ આપણી જે પામ છે જે સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યાં સુધીનો ભાગ, that known as the forearm. Okay, so in that we have basically two types of muscles, the superficial muscles and deep muscles. Clear? Superficial means કે ઉપર અને deep means થોડા શું હોય, ઊંડા હશે, deep લેયરમાં હશે. So that's why name is deep muscles. Now in superficial muscles basically we have total 5 muscles. So the name is first one pronator teres. Okay, just remember first name कि pronator teres, flexor carpi radialis. Radialis means what કે થંબની સાઈડ. ઓકે, એટલે એક થંબ સાઈડની વાત થાય છે. ફ્લેક્સર કાર્પાઈ રેડિયાલિસ. કાર્પલ મીન્સ કે શું કહેવાય છે, કાર્પલ્સ જે હોય એ. ઓકે, સો ફ્લેક્સર કાર્પાઈ રેડિયાલિસ, કાર્પલ સુધી એક ક્રોસ થતો હશે, દેટ્સ વાય નેમ ઇઝ ફ્લેક્સર કાર્પાઈ રેડિયાલિસ. then palmaris longus, longus means what કે લોંગ હશે. then flexor digitorum superficialis. હવે મસલ સુપરફિશિયલ છે એટલે સુપરફિશિયાલિસ નેમ આવ્યું. અને ડિજિટોરમ, સો ડિજિટ મીન્સ કે આપણી ફિંગર્સ, આંગળીઓ કે એટલે એ ડિજિટ સુધી જતું હશે એટલે એનું નામ મે બી ફ્લેક્સર ડિજિટોરમ સુપરફિશિયાલિસ છે. આપણે ડિસ્કસ કરશું એનું ઓરિજિન ઇન્સર્શન એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. નેક્સ્ટ ફ્લેક્સર કાર્પાઈ અલ્નારિસ. હવે અલ્ના મીન્સ વોટ, મીડિયલ સાઈડ એટલે કે જે લિટલ ફિંગર સાઈડ છે તે સાઈડ આ મસલ હશે. કે તો અગર આપણને વાયવામાં બોડી પર મસલ્સ પૂછ્યા હોય અને અલ્ના બાજુ હોય તો આપણે ઇઝીલી કહી શકીએ કે યસ ધીસ ઇઝ ફ્લેક્સર કાર્પાઈ અલ્નારિસ, ઓરિજિન ઇન્સર્શન જોઈને. ઓકે, અને રેડિયલ સાઈડ હોય તો ફ્લેક્સર કાર્પાઈ રેડિયાલિસ. તો આ રીતે થોડા ટિપ્સ વાઇઝ પણ આપણે આન્સર આપી શકીએ. સો બેઝિકલી ઇન સુપરફિશિયલ મસલ્સ વી હેવ ટોટલ 5. નાઉ વી ડિસ્કસ વન બાય વન. ओके, હવે અહીંયા છે डीप मसल्स. सो इन डीप मसल्स हमारे पास है टोटल 3 मसल, दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. ओके, सुपरफिशियल में कौन सा था, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, और यहाँ पे है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. डिजिट मीन्स ये भी डिजिट तक क्रॉस होगा. नेक्स्ट इज फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. पॉलिसिस मीन्स थंब, ओके, और लॉन्ग है. ओके, और फ्लेक्सर, तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. एंड लास्ट इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस. હવે क्वाड्रेटस मीन्स क्या कि क्वाड्रेटेंट होगा, चारे बाजू जो है उसकी इक्वल होगी, इसीलिए उसका नाम है प्रोनेटर क्वाड्रेटस. तो अब हम देखेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सुपरफिशियल मसल्स. फर्स्ट इज प्रोनेटर टीरिस. अब नेम पे से एक्शन भी हमें थोड़ी थोड़ी क्लियर होगी. प्रोनेटर मतलब प्रोनेशन में वर्क करता होगा. ठीक है, लेट्स सी. तो ये है हमारा प्रोनेटर टीरिस मसल. अब सिंपल एक बात मैं बताती हूँ कि जितने भी ये मसल है सुपरफिशियल मसल्स, उसका ओरिजिन सेम ही है, आपको सेम ही लिखना है, दैट इज़ मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आता तो जस्ट लिख के आइए कि कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन वो है मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. ओके, तो ओरिजिन देखते हैं हम. हियर देखो, इट इज़ मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. और दूसरा है कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना. अगर आपको वो भी याद नहीं आता तो जस्ट राइट के मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, यू गेट 1 मार्क्स. ओके, सो दैट इज मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. अनदर इज द कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना. नाउ इंसर्शन. इंसर्शन सबका डिफरेंट होगा, ठीक है, बट ओरिजिन इज सेम. इंसर्शन मीन्स कि जहाँ पे वो एंड हो रहा है, तो इट इज़ लेटरल सरफेस ऑफ मिड शाफ्ट ऑफ रेडियस. अब ये मसल देखो कैसा है, मीडियल साइड से स्टार्ट हो रहा है और लेटरल की तरफ जा रहा है, मतलब अल्ना में से उसका ओरिजिन हुआ और रेडियस में इंसर्ट हुआ. ठीक है, तो ये एक इसकी क्वालिटी है कि पूरा क्रॉस हो रहा है, थोड़ा सा बल्की है मसल
और कहाँ पे एंड हो रहा है, मिड सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ रेडियस, ठीक है, ये रेडियस का शाफ्ट है और ये अपर एंड है और नीचे उसका लोअर एंड होगा, तो बीच का जो पोर्शन होता है हम बोलेंगे शाफ्ट, बोन का शाफ्ट। तो इट एंड एट द लेटरल सरफेस ऑफ मिड शाफ्ट ऑफ रेडियस। नाउ एक्शन, मैंने बोला कि नेम ही एक्शन बता रहा है, दिस इज प्रोनेशन। तो ओरिजिन और एक्शन तो इजी हो गया, जस्ट रिमेंबर इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन भी इजी है कि अगर अल्ना से स्टार्ट हो रहा है तो जाएगा रेडियस में। तो दिस इज व्हाट अबाउट द प्रोनेटर टीरिस, एक्शन इज प्रोनेशन, ठीक है। अगर पाम जो है हमारी सीलिंग की तरफ है तो उसका डॉर्सम ऑफ पाम जो है वो सीलिंग की तरफ आएगा, उस एक्शन को हम बोलेंगे प्रोनेशन, क्लियर। सो दिस इज व्हाट एंड वीक फ्लेक्शन, सो दिस इज अबाउट द प्रोनेटर टीरिस मसल। देखिए यहाँ पे प्रोनेटर टीरिस मसल है बट दैट इज कट, सी दिस इज प्रोनेटर टीरिस, जहाँ से यहाँ से ओरिजिन हो रहा है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। मीडियल एपिकोंडाइल मतलब क्या, लिटिल फिंगर की साइड हम मीडियल साइड बोलते हैं, तो यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है और यहाँ पे क्रॉस हो रहा है रेडियस की तरफ, इंसर्ट हो रहा है, तो इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई, दैट इज प्रोनेटर टीरिस। सेकेंड सुपरफिशियल मसल इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। अब इसमें भी देखो नेम है फ्लेक्सर, ठीक है, मतलब फ्लेक्शन में हेल्प करता होगा। दूसरा है रेडियालिस एंड कार्पाई। अब कार्पाई मीन्स व्हाट, के कार्पल्स के रिलेटेड कुछ है इसमें, या तो इंसर्शन होगा, ठीक है, ओरिजिन तो सेम ही रहेगा, और रेडियालिस मतलब रेडियस बोन भी थोड़ा इंक्लूड हो। नाउ अब देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन इज मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, सबके लिए सेम है। इंसर्शन तो बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल, ठीक है, इसमें कार्पल आ गया तो इंसर्ट कहाँ हो रहा है, कार्पल्स में, कौन से, सेकंड मेटाकार्पल्स में, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तो सेकंड मेटाकार्पल में ये इंसर्ट हो रहा है, ये है हमारा मसल, ठीक है, ये दूसरा मसल है, ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है। अभी हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस की। इंसर्ट एट द बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल। अब एक्शन, तो फ्लेक्शन एक तो एक्शन हो गई उसकी, एंड रेडियल साइड है तो क्या करेगा, रेडियल डेविएशन में भी हेल्प करेगा। अब रेडियल डेविएशन मीन्स व्हाट, थंब की साइड हमारे हैंड पाम को ले जाएगा, उससे रेडियल डेविएशन बोलेंगे। अगर लिटिल फिंगर की साइड लाएगा, जैसे कि ये हमारा पाम है तो यहाँ पे थंब है और यहाँ पे लिटिल फिंगर है, तो पाम इस तरफ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे रेडियल डेविएशन, और अगर लिटिल फिंगर अल्ना की तरफ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे अल्नर डेविएशन, ठीक है। सो इट हेल्प इन अल्नर डेविएशन एंड फ्लेक्शन, ठीक है। और उसकी जो नर्व सप्लाई है वो है मीडियन नर्व, कौन सी नर्व, मीडियन नर्व, एंड रूट वैल्यू C6 एंड C7। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। ओरिजिन तो सेम ही है, इंसर्शन भी नेम सजेस्ट कर रहा है, कार्पाई मीन्स मेटाकार्पल है तो सेकेंड मेटाकार्पल में इंसर्ट होगा, और एक्सन तो रेडियालिस है तो रेडियल डेविएशन करेगा, और फ्लेक्सर मीन्स फ्लेक्शन करेगा रिस्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, ओके। This is our flexor carpi radialis, ठीक है। हमने देखा ये जो मसल था प्रोनेटर टीरिस फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। नेक्स्ट इज पामारिस लॉन्गस। अब लॉन्गस मीन्स लॉन्ग होगा तभी उसका नाम क्या है, लॉन्गस, और लॉन्ग मीन्स थीन भी होगा साथ में, सो इट इज अ थीन एंड लॉन्ग मसल, ठीक है। नाउ वी डिस्कस ओरिजिन सेम मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। इंसर्शन कहाँ पे होगा, लॉन्ग है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है कहाँ पे, सीधा मेटाकार्पल तक। तो डिस्टल हाफ ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम एंड पामर एपोन्यूरोसिस, ठीक है, वहाँ पे इसका होगा इंसर्शन। क्या याद रखना है, फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम, यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम, और ये बनेगा हमारा पामर एपोन्यूरोसिस। बाद में एनाटॉमी में आपको पढ़ने में आएगा कि व्हाट इज पामर एपोन्यूरोसिस, तो वहाँ पे ये इंसर्ट होगा, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे। एक्शन की बात करें हम तो इट फ्लेक्सेस द हैंड एट द रिस्ट, फ्लेक्शन में हेल्प करेगा। मसल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंड यहाँ हो रहा है तो एक्शन भी रिस्ट जॉइंट पे प्रोड्यूस होगी और होगी फ्लेक्शन। सो फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट इज द एक्शन ऑफ पामारिस लॉन्गेस्ट मसल, और नर्व सप्लाई इज मीडियन नर्व C7 एंड C8, तो इसकी भी नर्व सप्लाई सेम है, ठीक है। सो दिस इज पामारिस लॉन्गेस्ट मसल, देखिए कितना लॉन्ग मसल है ये, तो ये हमारा पामर एपोन्यूरोसिस है और ये फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम है, तो वहाँ पे इसका इंसर्शन होगा। ओरिजिन तो सेम ही है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और एक्शन में फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट।
फोर्थ मसल इज, अभी हम सुपरफिशियली डिस्कस कर रहे हैं, ओके। सो द फोर्थ मसल इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। सुपरफिशियलिस मीन्स सुपरफिशियल होगा, और डिजिटोरम मीन्स के डिजिट से रिलेटेड है कुछ। फ्लेक्सर मीन्स एक्शन कौन सी करेगी, फ्लेक्शन की, ठीक है ना। ओरिजिन इज कॉमन फ्लेक्सर टेंडन, मतलब कि मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस ही आएगा। इंसर्शन इज साइड ऑफ द मिडल फैलेंक्स ऑफ द फोर फिंगर्स, ठीक है, मतलब साइड जो फिंगर्स है हमारी उसकी साइड में क्या होगा, इसका इंसर्शन होगा फोर फोर फिंगर्स में। उसमें इंक्लूड है, देखिए ये सारी फिंगर्स थंब को छोड़ के, ठीक है। तो फोर फिंगर्स की साइड में ये इंसर्ट होगा और वहाँ भी मिडल फेलेंक्स तक। एक्शन है, नेम सजेस्ट एक्शन, फ्लेक्शन और डिजिट में यानी फिंगर, तो डिजिट्स का फ्लेक्शन करेगा, लेकिन कौन से जॉइंट पे, सो इट फ्लेक्सेस द एमपी एंड पीआईपी जॉइंट। हम एमपी मीन्स मेटाकार्पोफैलेंजियल, ठीक है, एंड पीआईपी मीन्स के प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, ठीक है। इंटरफैलेंजियल में हमारे टू जॉइंट्स है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो बेसिकली सुपरफिशियलिस कौन से जॉइंट का फ्लेक्शन करेगा, प्रॉक्सिमल। सो द प्रॉक्सिमल interphalangeal joints of fingers and innervation is यानी कि नर्व सप्लाई मीडियन नर्व, ठीक है। वास्कुलर सप्लाई इज अल्नर आर्टरी, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द मसल्स ऑफ हैंड सुपरफिशियलिस। नेक्स्ट इज द डायग्राम ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन में से यानी मीडियल एपिकोंडाइल में से, और इंसर्ट हुआ चार डिजिट की साइड्स में, ठीक है। और एक्शन क्या करेगा, डिजिट का फ्लेक्शन करेगा एमपी में और पीआईपी में। नेक्स्ट इज फिफ्थ सुपरफिशियल मसल इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। अब रेडियलिस तो हमने देखा, सेम होता अल्नारिस। अल्नारिस मीन्स अल्ना की साइड होगा, ठीक है, यानी लिटिल फिंगर की साइड होगा। ओरिजिन सेम मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। इंसर्शन कौन सा होगा, पिजिफॉर्म बोन, कार्पाई है मतलब कार्पल के रिलेटेड तो कुछ होगा ही, पिजिफॉर्म बोन, देन हुक ऑफ हेमेट बोन एंड फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, ठीक है। कार्पल आ गया इसमें, तो फिफ्थ मेटाकार्पल बोन यानी लिटिल फिंगर आ गई, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ है हमारी लिटिल फिंगर, तो उसका बोन है मेटाकार्पल बोन, वहाँ पे ये इंसर्ट होगा, ठीक है। तो देखिए ये है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के पास इंसर्ट हो गया, और पीजीफॉर्म बोन भी हम लिख सकते हैं। एन एक्शन इज फ्लेक्सर यानी फ्लेक्शन तो करेगा ही, और अल्नारिस यानी अल्नर डेविएशन करेगा। सो एक्शन इज फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड अल्नर डेविएशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्शन ऑफ FCU, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। इनर्वेशन एंड नर्व सप्लाई अल्नर नर्व, ठीक है, नेम पे से हम लिख सकते हैं कि अल्नर नर्व, एंड रूट वैल्यू इज C7 and C8. So here we complete all the superficial muscles of forearm. Now we discuss about the deep muscles. So basically deep muscles માં આપણે ત્રણ જોયેલા હતા, એમાંથી ફર્સ્ટ છે flexor digitorum profundus. Okay, so flexor digitorum profundus originate at the proximal 3/4 of ulna, ठीक છે। હવે deep muscles માટે origin બદલાઈ જશે, so it originates from the proximal 3/4 of ulna, यानी कि अल्ना बोन है, એટલે કે આ લિટલ ફિંગર છે, આ થંબ છે, ઠીક છે। તો પ્રોક્સિમલ સાઈડ એટલે કે ઉપર સાઈડ 3/4 ઓફ અલ્ના, એટલે અહીંયા એનું ઓરિજિન છે। ઇન્સર્શન બેઝ ઓફ ડિસ્ટલ ફેલેંક્સ ઓફ ડિજિટ 2 to 5, ઠીક છે। ફર્સ્ટ નહીં આવશે 2 to 5, એ ફિંગર્સમાં એનું શું થશે, ઇન્સર્શન, અને એના ડિસ્ટલ ફેલેંક્સ સુધી, ઠીક છે। જ્યારે આપણે સુપરફિશિયલિસ જોયું ત્યારે પ્રોક્સિમલ ફેલેંક્સ સુધી જ એનું ઇન્સર્શન હતું, બટ ઇન ડિજિટોરમ પ્રોફન્ડસ ઇટ એક્સટેન્ડ અપ ટુ ધી ડિસ્ટલ interphalangeal joints. તો એક્શન શું આવશે, એક્શન ઇઝ flex the distal phalanges at the distal interphalangeal joint DIP. ओके, मतलब जो हमारी फिंगर है उसके अपर पार्ट जो है, जहाँ जहाँ पे हमारे नेल्स है, ठीक है, उसे हम थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे, तो वो एक्शन हुई फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की, ठीक है। और उसके थोड़े से नीचे वाले पोर्शन तक हम फ्लेक्स करेंगे, तो वो एक्शन हुई सुपरफिशियलिस की। क्लियर। सो दिस इज अबाउट डिजिटोरम प्रोफंडस। उसका इनर्वेशन है, दो नव इसे इनर्वेट करती है, एक तो अल्नर नव क्योंकि अल्ना की साइड है, और दूसरी मीडियन नव, तो इसकी दो नव सप्लाई है, याद रखना। प्रोफंडस सप्लाई बाय 2 नर्व्स
ulnar nerve and median nerve, not medial, median nerve. Okay, so this is about the profundus. See, second deep muscle is flexor pollicis longus muscle. अब longus means long है और pollicis means के thumb के related है और flexor means के flexion की एक्शन करेगा ये, ठीक है। अब origin कौन सा है? origin is the anterior surface of radius इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। अब हमें थोड़ा सा आइडिया क्लियर आ रहा है कि पॉलिसिस मीन्स थंब की साइड होगा और थंब की साइड कौन सा बोन है? रेडियस बोन, ठीक है। तो रेडियस बोन की तरफ कौन सा आ जाएगा? ओरिजिन। तो ओरिजिन इज एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, मतलब रेडियस और अल्ना के बीच में जो स्पेस रहती है उसे बोलेंगे इंट्रोसियस, ठीक है। तो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन इंसर्शन होगा डिस्टल फेलेंक्स ऑफ थंब, ठीक है। जो थंब के अंदर 2 फेलेंक्स आएंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे डिस्टल फेलेंक्स ऑफ थंब और इनर्वेशन यानी नर्व सप्लाई में है मीडियन नर्व एंड फंक्शन इज फ्लेक्शन ऑफ थंब एंड फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, ठीक है। 2 एक्शन करेगा ये। तो दिस इज अबाउट द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल एंड अवर लास्ट मसल इज, ये देख ली, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। लास्ट इज डीप मसल दैट इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब मैंने बोला था क्वाड्रेटस मीन्स इसके चारे बाजू इक्वल है, देखिए इस तरह का स्क्वायर टाइप मसल है और बहुत ही स्मॉल मसल है जो जैसे कि अल्ना से स्टार्ट हो रहा है और रेडियस पे ख़त्म हो रहा है। तो उसका ओरिजिन है डिस्टल एंटीरियर एंड ऑफ अल्ना, ठीक है। ये अल्ना है और ये रेडियस है। तो डिस्टल एंटीरियर एंड ऑफ अल्ना origin and insertion at the distal anterior end of radius, simple, and action is pronation, name suggests action, रिमूविंग स्क्रू विद द राइट हैंड, ओके। अगर हम राइट हैंड से स्क्रू रिमूव कर दें तो उस वक्त ये मसल जो है वर्क करता है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द डीप मसल्स इन द फोरआर्म। और आज हमने डिस्कस किया फ्रंट ऑफ फोरआर्म, ठीक है ना। अब टुमारो की जो वीडियो आएगी, ठीक है, कल जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, बैक ऑफ फोरआर्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट किया फ्रंट ऑफ फोरआर्म जिसमें सुपरफिशियल एंड डीप 2 लेयर वाइज मसल होते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एनाटॉमिक वीडियोज़ एंड इफ़ यू हैव डाउट और यू वांट रिविज़न ऑफ एनी टॉपिक इन एनाटॉमी जो आपको समझ नहीं आता वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।